नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6th Sem, course Pedagogy of Civics. Students, today our session or topic is type of measurement. We will discuss about both language, first English, then after Hindi. Let's see in English. Measurement is of two types. First, physical measurement, and second, mental measurement or psychological measurement or educational measurement. Let's in detail one by one. First is physical measurement. Physical measurement is the measurement of the object which has absolute existence. For example, we measure the height of individuals, the weight of rice, etc. Here we directly measure the height or weight of an individual, and all the measuring tools of physical measurement start from zero. Physical measurement is always accurate and quantitative, and there are some set of tools of physical measurement all over the world. Second is mental measurement. Mental measurement is also known as educational measurement or psychological measurement. It is always relative and there is no absolute zero in case of mental measurement. For example, for measuring the intelligence of a person, we have to take the help of intelligence tests which are subjective in nature. Through his response, we can know the level of intelligence of the person concerned. Mental measurement is both qualitative and quantitative in nature, and there are no fixed tools for such measurement. The same set of tools may not be applied to different types of persons. The application of the principles of measurement in the field of education is known as educational measurement. In the educational system, measurement is the quantitative assessment of performance of the students in a given test. It can be used to compare performance between different students and to indicate the strengths and weakness of the students. It helps in classifying students into homogeneous group to assign educational and vocational guidance and to provide remedial measures to the low achievers. Measurement is a tool in the hands of educational psychologists to study human behavior. Educational psychologists take the help of different valid and reliable psychological tests to know the level of different traits within an individual.
The different kinds of such tests are intelligence test, achievement test, attitude test, aptitude test, interest, inventory, personality test, etc. The methods used these tests are observation, interview, checklist, rating scale, examinations, cumulative records card, and anecdotal anecdotal records, etc. In the teaching learning situation, teachers should be competent enough to measure the student's achievement, intelligence, attitude, aptitude, etc. To develop contemporary among the teachers in the educational measurement, Ebel has suggested the following messages. First, A. Know how to administer a test properly, efficiently, and fairly. B. Know how to interpret test scores correctly and fully, but with recognition of their limitations. C. Know how to select a standardized test that will be effective in a particular situation. And D. Know how to plan a test and write the test questions to be included in it. And next, know the educational usage as well as the limitations of educational tests. And next and last is note the criteria by which the quality of a test should be judged and how to secure evidence relating to these criteria. This session prepared digital version 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान. लेट्स सी इन हिंदी. आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसका नाम है माप का प्रकार. ठीक है, टाइप ऑफ मेजरमेंट. माप जो वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक माप, दूसरा मानसिक माप या मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक माप. पहला जो है शारीरिक माप. शैक्षिक माप भौतिक माप उस वस्तु का माप है जिसका पूर्ण अस्तित्व है. उदाहरण के लिए हम व्यक्तियों की ऊंचाई, चावल का वजन आदि मापते हैं, या हम सीधे किसी व्यक्ति की ऊंचाई या वजन को मापते हैं. और भौतिक माप के सभी मापक उपकरण शून्य से शुरू होते हैं. भौतिक माप हमेशा सटीक और मात्रात्मक होता है और दुनिया भर में भौतिक माप के लिए कुछ उदाहरण होते हैं. अब बात करते हैं दूसरे माप की, वो है मानसिक माप. मानसिक माप को शैक्षिक माप या मनोवैज्ञानिक माप के रूप में भी जाना जाता है. यह हमेशा सापेक्ष होता है और मानसिक माप के मामले में कोई पूर्ण शून्य नहीं होता है. उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को मापने के लिए हमें उन बुद्धि परीक्षणों की मदद लेनी होगी जो स्वभाव से व्यक्तिपरक हैं. उनकी प्रतिक्रिया के माध्यम से हम संबंधित व्यक्ति की बुद्धि के स्तर को जान सकते हैं. मानसिक माप गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के होते हैं और इस तरह के माप के लिए कोई निश्चित उपकरण नहीं होते हैं. अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों पर एक ही उपकरण लागू नहीं किया जा सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में माप के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को शैक्षिक मापन के रूप में जाना जाता है. शैक्षिक प्रणाली में माप किसी दिए गए परीक्षण में छात्रों या विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक मूल्यांकन है. इसका उपयोग विभिन्न छात्रों अर्थात विद्यार्थियों के विभिन्न प्रदर्शन की तुलना करने और विद्यार्थियों की ताकत तथा कमजोरियों को इंगित करने के लिए किया जा सकता है. यह विद्यार्थियों को समरूप समूह में वर्गीकृत करने में भी मदद करता है. शैक्षिक और व्यावसायिक प्रदर्शन प्रदान करने और कम प्राप्तकर्ताओं को उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए मापन मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों के हाथों में एक उपकरण है.
शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एक व्यक्ति के भीतर विभिन्न लक्षणों के स्तर को जानने के लिए विभिन्न वैध और विश्वसनीय मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता लेते हैं। इस तरह के परीक्षणों के विभिन्न प्रकार हैं: खुफिया परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, दृष्टिकोण परीक्षण, योग्यता परीक्षण, ब्याज सूची, व्यक्तित्व परीक्षण इत्यादि। इन परीक्षणों के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां हैं: अवलोकन, साक्षात्कार, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, परीक्षाएं, संचयी रिकॉर्ड कार्ड और उपाख्यान रिकॉर्ड इत्यादि। शिक्षण सीखने की स्थिति में शिक्षकों को विद्यार्थी की उपलब्धि, बुद्धिमत्ता, दृष्टिकोण, योग्यता इत्यादि को मापने के लिए पर्याप्त सक्षम होना चाहिए। शैक्षिक माप में शिक्षकों के बीच योग्यता विकसित करने के लिए ईबेल ने कुछ उपाय सुझाए हैं, जिसमें पहला है एक व्यक्ति को ठीक से कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबंधित करने का तरीका जानना चाहिए। दूसरा, टेस्ट स्कोर की सही और पूरी तरीके से व्याख्या करना जानना चाहिए, लेकिन उसकी सीमाओं की मान्यता के साथ पता होना चाहिए सीमाओं के बारे में। तीसरा है सी, एक मानकीकृत परीक्षण का चयन करना जो किसी विशेष स्थिति में प्रभावी हो। अगला है डी, परीक्षण की योजना बनाना और परीक्षण प्रश्नों को लिखना, इसमें सम्मिलित सभी हैं। इसके बाद अगला ई, शैक्षिक उपयोगों के साथ साथ शैक्षिक परीक्षणों की सीमाओं को भी जानना। और लास्ट है उन मापदंडों को जानना जिनके द्वारा एक परीक्षण की गुणवत्ता को आंका जा सके और इन मापदंडों से संबंधित साक्ष्यों को कैसे सुरक्षित किया जा सके, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। ये जो डिजिटल 2.0 वर्जन है उसके द्वारा इस सेशन को तैयार किया गया है, जो कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार है। आगे के वीडियो में आप देखते जाइए, जिससे आप अपने सेशंस और इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।